that is system programming and operating system. Basically, it is a combination of two subjects, that is system programming and another one is operating system. Right? So the first 3 units are based on the system programming and the last 3 units are based on the operating system. Okay. Can anybody tell me what you know about the system programming? What do you think? What should be the system programming? What kind of system? What kind of programming? Anybody knows? Am I audible? Hello? Yes, ma'am, you're audible. Okay. So do you know what is system, what is programming kind of things? Okay, we always say that, yes. All the Yes, instructions Prajit, written please in speak. the ROM. All the Instructions written in the ROM. Okay, that could be the system or the software. System programming is whatever the individual piece of software. You are okay. It is a kind of software you are saying, right? Yes, ma'am, that allow the entire system. Or something else. Okay, in general terms, please tell me what is system. General terms. Don't go into the specific of computer or any hardware or software related thing. In general, what could be the system? Yes, any answer? In general terms, we are saying that our computer is a system. Why we are saying that? My computer system, right? Computer system we are saying. So why we are calling it as a system? Because it is consist of number of components. Okay, जब हम computer के बारे में सोचते हैं, we are thinking about the computer. The monitor is there, the CPU is there, the keyboard is there, mouse is there. So that computer system is consist of number of components, and that's why we are calling it as a system, right? So similarly, we are having one kind of system, and that is also composed or built up from the number of components. Okay, and we are going to study that components in detail in this first unit. Okay, so what is a system? System is nothing but the collection of components. Okay, जब अभी हमने एग्जांपल लिया था कंप्यूटर सिस्टम का, ओके तो यहाँ पे जनरल टर्म्स हो गए हार्डवेयर आपके, वॉट एवर द मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, दीज आर नथिंग बट योर कंपोनेंट्स. ओके, उस इन कंपोनेंट्स को मिला के हमारा क्या बना है? सिस्टम बना है. Okay, in similar ways we are going to study our system, okay, which is kind of software, okay, in detail in this first unit. Okay, let me share the PPTs with you, then we will start the unit number 1. Yes, are you able to see the PPT? Hello? Yes, ma'am. Screen दिख रही है सबको? Okay, so as I said that the first 3 units are based on the system programming, okay, and the unit number 1 is the name of unit number 1 is what? Introduction of your system programming, right? So we will start the lecture from the system programming. Okay, so these are two basic questions: what is system, what is programming? Okay, in detail we will see. So here is the example of college. Okay, जैसे कि अभी मैंने कंप्यूटर के बारे में बताया, कंप्यूटर इज अ सिस्टम. द सिमिलर वे वी आर टेकिंग अ जनरल एग्जांपल अबाउट द कॉलेज. सो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कॉलेज इज अ सिस्टम, एंड द डेफिनेशन ऑफ सिस्टम इज व्हाट? द सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स. ओके, सो हाउ योर कॉलेज कैन बी द सिस्टम? Okay, because your college is a system, because it consists of various components. Okay, now components here are the components which are the components here. For example, department, classroom, faculty, students. Okay, these are the components, और इन सबको मिला के हमारा क्या बना है? हमारा सिस्टम बना है, जो कि सिस्टम क्या है? कॉलेज सिस्टम है. Okay, so now
सिस्टम तो एक बार समझ में आ गया, जैसे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में मैंने भी बताया, कॉलेज सिस्टम के बारे में भी बता रही हूँ। मेरा एक कॉलेज है, तो वहाँ पे एक बिल्डिंग्स आती है, उस बिल्डिंग्स के अंदर क्लासरूम्स आते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स आते हैं, क्लासरूम्स आते हैं। ओके, तो इन सारे क्या है, हमारे कंपोनेंट्स है, और इन सबको हमने जब कंबाइन किया, देन आवर कॉलेज सिस्टम विल बिल्ड, राइट। सो सिस्टम तो क्लियर है, राइट। लेकिन व्हाट इज द प्रोग्रामिंग? ओके, सिस्टम प्रोग्रामिंग हम पढ़ रहे हैं, तो जनरल टर्म्स में हमें सिस्टम पता चला, सिस्टम इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। ओके, सो व्हाट इज द प्रोग्रामिंग? ओके, सो बेसिकली यहाँ पे एक डेफिनेशन है, द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम्स। Okay, that will be your programming, the art of designing and implementing the programs. Okay, can anybody tell me, if we are taking a college as a system, we are taking an example of college as a system, then what can be the program in this case? Are you getting my question? Hello? Yes, ma'am. Hello? ओके, क्वेश्चन ये मेरा है कि सिस्टम में बोल रही हूँ, मेरा एक कॉलेज एक सिस्टम है। ओके, तो सिस्टम मुझे समझ में आ गया कि इट इज अ कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। ओके, तो इस केस में प्रोग्राम क्या हो सकता है? प्रोग्रामिंग का डेफिनेशन क्या है हमारा? द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम्स। ओके, तो डिजाइनिंग हमें पता चलता है, डिजाइन करना है, इम्प्लीमेंटिंग भी पता चलता है, जो भी डिजाइन किया है उसे इम्प्लीमेंट करना है। ओके, द प्रोग्राम, अभी हमने यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल लिया है विच इज अ कॉलेज, राइट। नाउ प्रोग्राम क्या हो सकता है कॉलेज सिस्टम के अंदर, और जनरली व्हाट इज अ प्रोग्राम? जनरल टर्म्स में बताओ, जो आपको पता है प्रोग्राम्स के बारे में, प्लीज टेल मी। Ma'am, teachers. सॉरी, हेलो, हेलो, yes, what can be a program in case of college system? Yes, Rudresh, please speak. Ma'am, in general, program is a collection of statements. In college system, it might be teachers and students. ओके, तो अभी आपने क्या बोला कि प्रोग्राम क्या हो सकता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, ठीक है, ये हो गई बॉडी ऑफ प्रोग्राम। ओके, तो जब भी आप फॉर एग्जांपल आप सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम कर रहे हो, ओके, और आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एडिशन का प्रोग्राम आप लोग कर रहे हो। ओके, तो उसके अंदर आपने कुछ लॉजिक लिखा है। लॉजिक मतलब क्या? आपका जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी आपको करना है वो आप लिखोगे, दैट विल बी योर प्रोग्राम। ओके, सो दो नंबर्स की एडिशन करने का अगर आपका प्रोग्राम है, तो आपको पहले इनपुट क्या देना पड़ेगा? दो नंबर्स देने पड़ेंगे। उसके बाद जो भी आपने इंस्ट्रक्शन का सेट लिखा हुआ है वो उसके ऊपर ऑपरेट करेगा। ओके, और फाइनली आपको क्या देगा? रिजल्ट देगा, दैट विल बी द एडिशन। ओके, मींस व्हाट? तो प्रोग्राम को क्या चाहिए? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चाहिए, द इनपुट चाहिए एंड द आउटपुट चाहिए, राइट। इनपुट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड द आउटपुट, दैट इज योर प्रोग्राम इन द केस ऑफ सॉफ्टवेयर्स, राइट। सो यहाँ पे मैं एक कॉलेज सिस्टम ले रही हूँ। ओके, तो उसमें प्रोग्राम क्या हो सकता है? जैसे कि आपने अभी बोला टीचर एंड स्टूडेंट, क्या बोलना चाहते हो आप टीचर एंड स्टूडेंट के बारे में? वो कैसे पिक्चराइज होंगे एज ए प्रोग्राम? टीचिंग लर्निंग तो अभी प्रोसेस। मेरा हिंट आपको ये है कि, सॉरी, Teacher will give a set of instruction to the हेलो, student and it yes, or in a simple terms we can say a lecture. A yes, lecture can be a program because yes, the input, yes, lecture में क्या होता है कि स्टूडेंट्स रहते हैं, फैकल्टी रहती है, फैकल्टी आपको कुछ नॉलेज देती है, ओके, कुछ इनपुट देती है, कुछ इंफॉर्मेशन देती है। ओके, तो आप लोग क्या करते हो? उसको प्रोसेस करते हो और आप लोग आपके पास रखते हो। मतलब इनपुट क्या है? द नॉलेज द फैकल्टी हैव, ओके, एंड आउटपुट इज व्हाट? द नॉलेज द स्टूडेंट्स विल रिसीव। ओके, सो लेक्चर इज अ प्रोग्राम। ओके, सो प्रोग्रामिंग क्या है? इस लेक्चर को डिजाइन करना एंड इम्प्लीमेंट करना। ओके, सो प्रोग्रामिंग इज व्हाट? द डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ योर प्रोग्राम्स। और यहाँ पे मैंने प्रोग्राम क्या लिया है इन जनरल टर्म्स? अ लेक्चर। लेक्चर कैन बी अ प्रोग्राम बिकॉज इट इज हैविंग अ इनपुट एंड इट इज हैविंग अ आउटपुट। ओके, तो नॉलेज, जो भी इंफॉर्मेशन टीचर के पास है, वो इस तरीके से आपको बताते हैं जिससे जो इंफॉर्मेशन नॉलेज में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब इंफॉर्मेशन इज माई इनपुट एंड द नॉलेज इज माई आउटपुट। ओके, सो सिमिलरली द प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट द आर्ट ऑफ designing and implementing this lecture, that is nothing but your programming. Any doubt in this system and programming? If you have any kind of doubt, please ask. Yes, any doubt? Hello,
No, ma'am. Okay, so let's move forward. Now, similarly, जो भी आपको अभी मैंने बताया, सेम PPTs में भी है. So in a college system, what can be a program? A lecture can be a program. Okay, so because it is having input also and output also. So input is what? The information that teacher is delivering, and the output is what? The knowledge student has been received. Okay, this is what my program, and the programming is what? The art of designing and implementing this kind of program is nothing but the programming. Okay, so we can simply say that art of designing and implementing the system programs, that will be our system programming. Okay, so ये हो गया अपना जर्नल टर्म्स में, जो कि कॉलेज सिस्टम है हमारा. बस सिस्टम एंड प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक जर्नल एग्जांपल लिया था. ओके, नो हमारा कंप्यूटर जो है, हम कंप्यूटर ब्रांच के स्टूडेंट्स है. सो व्हाट कैन बी द सिस्टम प्रोग्रामिंग इन केस ऑफ योर कंप्यूटर, और यू कैन से द सॉफ्टवेयर. ओके, सो हमें टेक्निकली अभी ये पढ़ना है कि सिस्टम प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली है क्या. ओके, सो उसके पहले हमें पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर क्या है. Okay, so software क्या है? A software is a collection of many programs. Okay, software is nothing but the collection of many programs, and programs are nothing but the set of instructions, steps of instructions or set of instructions. Okay, so there are two types of software are available. The first one is what? System software, and the second one is what? Application software. Okay, so system software, application software, आपको difference पता होना चाहिए. So what is system software? So these programs assist the journal user application programs. Okay, and application software क्या है? These are the software developed for the specific goal. Okay, first we will talk about the application software. Okay, उसके बाद हम system software के पास आते हैं. Okay, so application software की definition यहाँ पे क्या दी हुई है? These are the softwares which are developed for the specific goal. Okay, so meaning क्या है? ऐसे softwares जो कि स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए बनाए गए हैं, दैट आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. और यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मीडिया प्लेयर, एडोब रीडर, आपका पीपीटी प्रेजेंटेशन, आपका व्हाट्सएप. ओके, ये सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. ओके, तो यहाँ पे हमने दो एग्जांपल्स हम लेते हैं. फॉर एग्जांपल द मीडिया प्लेयर. ओके, तो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द स्पेसिफिक गोल फॉर मीडिया प्लेयर? यस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक एग्जांपल दिया है मीडिया प्लेयर. Okay, and the definition of application software is what? The softwares which are developed for the specific goal. So what is the goal of media player? Playing videos. Audio and video. Okay, whatever the media files you have to play that files. Okay, so that is the specific goal of media player. Can we open the PDF or document file in the media player? No, ma'am. No, because the media player is specifically designed for playing the media files. Okay, and that is the meaning of your application software. Okay, so application softwares are built up for the specific goal. Similarly, the Adobe Reader. What is the use of Adobe Reader? To read the PDF documents. Okay, so we can't open the media files like audio and video files in the Adobe Reader because it is specifically designed for the to play the PDF files. Adobe Reader is specifically designed for the PDF files. We can't open the media files in the Adobe Reader. Okay, so सबको समझ में आया होगा तो what is the application software? Now we come to the system software. Okay, so these programs assist general user application programs. Okay, now general user application programs means what? Our media player, Adobe Reader, or we can simply say the application software. Okay, so these programs assist the application softwares to run. Are you getting my point? These programs assist the general user application programs. तो general user application programs कौन से हैं? The media player, the Adobe Reader, the WhatsApp and all that thing means what? Your application software. तो application softwares को run होने के लिए assistance कौन provide करता है? System software. Okay, so जो भी कोई आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है, उनको रन करने के लिए हेल्प कौन करता है? हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर. और सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या बताया यहाँ पे? ऑपरेटिंग सिस्टम और असेंबलर और मेनी मोर, कंपाइलर एंड ऑल दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर्स आल्सो. ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फर्स्ट example of your system software. In short, we can say without an operating system we can't play media player, we can't play Adobe Reader. ओके, जो भी कोई आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके पास है, उनको रन करने के लिए आपको किसकी जरूरत है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत है. और सिस्टम सॉफ्टवेयर का फेमस एग्जांपल कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम. सो वी कैन सिंपली से टू रन
or to play the application software, we must have the system software, in bracket the operating system. So without operating system, we can't play our media player, we can't play our Adobe Reader. Are you getting my point? Hello? Yes, ma'am. Any doubt in this PPT? No, ma'am. Okay, so these were the some prerequisite to start our first unit. Okay, now we'll see the two more definition and then we'll actually start our syllabus. Okay, so as our subject name is what? System programming. Before that we will must have to understand system program. Okay, please unmute yourself. Yes, जिसका mic चालू है please mute yourself. Yes, thank you. Okay, so technically, what is system program? These are the programs which are required for the effective execution of general user programs on your computer system. Okay, so what is system program? The system programs are the programs which are required for the effective execution of your application software. और application software को आप क्या बोल सकते हो? General user programs on your computer system. That will be your system program. Means what? The system software is equal to system program. मतलब system software को हम क्या बोलते हैं? System program बोलते हैं. Okay? And what will be system programming then? It is an art of designing and implementing the system programs. Okay? तो जो भी हमने कुछ पढ़ा है system program के बारे में, उसको डिजाइन करना, implement करना, that will be your system programming. And this is the introduction of your subject. Okay? System program. First 3 units are based on this system programming. Right? So we will start the actual syllabus of your first unit, the introduction. Okay, so it requires 9 hours to complete. Unit number 1, the name of the unit number 1 is introduction. In this introduction, we are going to study introduction about the components of system software, or we can say system program. The components of system software, or we can say components of system program. Okay, तो कौन-कौन से components हमें यहाँ पे पढ़ने हैं? The first one is what? Text editors. The second one is loader. Third one is assembler, macro processor, compiler and the debugger. ओके तो ये सारे क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इन सबको मिला के क्या बनाया है? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया है, सिस्टम प्रोग्राम बनाया है. ओके सो ये हमें शॉर्ट में हमें इनका इंट्रोडक्शन देखना है. क्या होता है टेक्स्ट एडिटर, लोडर्स क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, मैक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं, कंपाइलर क्या होते हैं, डिबगर्स क्या होते हैं. ओके सो दीज आर नथिंग बट द कंपोनेंट्स ऑफ योर सिस्टम सॉफ्टवेयर. इन सबको मिला के आपका जो कोई सिस्टम है वो बनाया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया और वी कैन से सिस्टम प्रोग्राम बनाया. ओके उसके बाद हमें देखना है मशीन स्ट्रक्चर. ओके व्हाट इज मशीन? दिस इज द हार्डवेयर पार्ट. अगेन व्हाट इज अ मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. ओके मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज में हमें डिफरेंस देखना है क्या है. ओके उसके बाद हमें क्या बनाना है? असेंबलर को डिजाइन करना है. ओके सो द होल यूनिट फोकस्ड ऑन योर असेंबलर. सो दीज आर बिफोर असेंबलर दीज आर इंट्रोडक्टरी पार्ट. ओके द कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर का हमें इंट्रोडक्शन ही देखना है बस. उसके बाद मशीन स्ट्रक्चर हम देखेंगे और मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, क्यों असेंबली लैंग्वेज बनाई गई है वो देखेंगे. और आफ्टर दैट द फाइनल मेन पॉइंट ऑफ दिस यूनिट इज व्हाट? असेंबलर्स. ओके असेंबलर को किस तरीके से आपको बनाना है. ओके सो उसकी जनरल डिजाइन प्रोसीजर क्या है एंड हाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन अ 2 पास असेंबलर. अभी 2 पास क्या है, 1 पास क्या है, वो हम सब डिटेल में देखने वाले हैं. Okay, so this is what your syllabus of your unit number 1. Okay, so the point number 1 is what? Introduction of components of system software, and the very first component is what? Text editor. Okay, okay, so यहाँ पे आप देख सकते हो text editor. The text editor is what? Notepad. Okay, जिसमें आप text को edit करते हो. Okay, that is nothing but your notepad. Okay, so editor is a computer program that allows a user to create and revise a document. जैसे कि आपका नोटपैड वर्क करता है, सिमिलरली आपका टेक्स्ट एडिटर का एग्जांपल, फेमस एग्जांपल है नोटपैड. उसके बाद नोटपैड प्लस प्लस. ओके you can have number of many text editors. Okay, so editor is nothing but what? Computer program है and it allows a user to create and revise a document. Whatever the document you are having, you can create or you can revise the document in the text editor. Okay, so text editor is a program in which
द प्राइमरी एलिमेंट बीइंग एडिटेड आर द कैरेक्टर स्ट्रिंग्स. ओके, द प्राइमरी एलिमेंट क्या है टेक्स्ट एडिटर में एडिट करने का, विच इज स्ट्रिंग्स, नंबर ऑफ, और वी कैन से द सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स. Okay, you can also type numbers and all that, but primary is what? Strings, or we can say the set of characters. Okay, so text editor is an example, or it can be a type of program which is used for the plain text file. Okay, so editor में भी क्या है, एक text editor है, और उस text editor का used क्या है, to edit the plain text files. Okay, whatever the plain text files you are having, you can edit, you can revise these documents in the text editor. Okay, and the last and very important line is what? With the help of text editor you can write your program, for example C program or Java program. Okay, so with the help of text editor you can write your program, C program, Java program आप यहाँ पे लिख सकते हो by using the text editor. Okay, so जैसे कि C लैंग्वेज टर्बो C आपने सुना होगा. Okay, उसके साथ भी एक एडिटर आता है, उसमें आप क्या करते हो, C प्रोग्राम को टाइप करते हो, उसके बाद आप कंपाइल करते हो, रन करते हो. ओके, सिमिलरली हमारा एक टेक्स्ट एडिटर एक कंपोनेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, और उसका एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है नोटपैड. ओके, नोटपैड में हम क्या करते हैं, वी कैन क्रिएट, ओपन, डिलीट, सेव द डॉक्यूमेंट. ओके, और प्राइमरीली हम स्ट्रिंग्स यहाँ पे यूज करते हैं. ओके, और द सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इज व्हाट, द टेक्स्ट एडिटर, इन द टेक्स्ट एडिटर यू कैन राइट योर प्रोग्राम, दैट इज सी प्रोग्राम और जावा प्रोग्राम. एनी डाउट इन दिस टेक्स्ट एडिटर? हेलो हेलो. ओके, सो टेक्स्ट एडिटर वेरी सिंपल, जो कि नोटपैड है हमारा, वो कैसे फंक्शन करता है आप सब लोगों को पता है, यू कैन राइट अबाउट इट. ओके, सो द नेक्स्ट कंपोनेंट इज व्हाट, loader. Okay, so what is a loader? Okay, a loader is a program that takes object code as an input and prepares them for execution. Very very important point for the in-sem exam and the end-sem exam. 2 times a question is asked on the loaders. Okay, so the question was like, what is a loader? Explain its 4 important functions. Okay, so 2 times back to back this question is asked on in the in-sem examination. Okay, so what is a loader? So firstly it is a component of system software. जो भी हम अभी देख रहे हैं वो क्या है, component of system software है, और उसका definition ऐसा है, a loader is a program that takes object code as an input and prepares them for the execution. Okay, now we will divide this sentence in some words. Okay, so loader is basically a program, right? उसके बाद it takes object code as an input. Now what is the object code? Okay, so in this unit, object code is the output of assembler, but you don't know about the assembler in detail. Okay, but you know about the compiler. Okay, so यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, object code is the output of compiler. For example, you are having a C program. Okay, C program को आपने text editor में type किया हुआ है. Okay, उसके बाद with the help of compiler आपने उसको compile किया है. Okay, जब आप compile करते हो उस program को, C program को, तो उसका output क्या होता है, object code. और उस ऑब्जेक्ट कोड को लोडर उठाता है. ओके, उसको एज ए इनपुट लेता है. ओके, ऑब्जेक्ट कोड, उस ऑब्जेक्ट कोड को क्या करता है, लोडर एज ए इनपुट लेता है एंड प्रिपेयर्स देम फॉर द एग्जीक्यूशन. ओके, तो एग्जीक्यूट, अभी वो रन नहीं हुआ है, आपका जो सी प्रोग्राम है अभी तक रन नहीं हुआ है, बस कंपाइल हुआ है. कंपाइल हुआ है, कंपाइलर क्या करता है, फर्स्टली कि उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, सी प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्जन करता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी अपने में सी बोला है, सी लैंग्वेज के बारे में बोला, इसलिए सी का कंपाइलर आएगा. अगर आप जावा प्रोग्राम लिखते हो, ओके, तो जावा प्रोग्राम का जेवीएम जो है, जावा वर्चुअल मशीन, ओके, तो वो क्या करता है, उस जावा प्रोग्राम को कंपाइल करके हमें ऑब्जेक्ट कोड देता है, और उस जावा की लैंग्वेज में उसे बाइट कोड कहते हैं. ओके, बाइट कोड हमें देता है. ओके, हर एक लैंग्वेज का डिफरेंट कंपाइलर होता है. तो जैसे कि सी का सी कंपाइलर है और जावा का जेवीएम है, हमारा जावा वर्चुअल मशीन. ओके, दोनों का वर्किंग क्या है कि आपका जो भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है उसका आउटपुट किस में करो, ऑब्जेक्ट कोड में करो. और उसके बाद जो आता है कंपाइलर, सॉरी लोडर पिक्चर में आता है. तो लोडर क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड को लेता है एज ए इनपुट एंड प्रिपेयर्स इट फॉर द एग्जीक्यूशन. तो कैसे प्रिपेयर करता है एग्जीक्यूशन के लिए, तो हम देखते हैं. ओके, द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लोडर इज व्हाट, इट इनिशिएट द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के लिए स्टार्ट करता है. ओके, और जब ये एग्जीक्यूशन के लिए स्टार्ट करता है तो ये प्राइमरीली 4 फंक्शंस को परफॉर्म करता है. द फर्स्ट फंक्शन इज व्हाट, अलोकेशन, देन सेकंड वन इज लिंकिंग, थर्ड वन इज रिलोकेशन एंड द फोर्थ वन इज व्हाट, लोडिंग. ओके, सो द फर्स्ट फंक्शन इज व्हाट, द अलोकेशन. ओके, सो क्या हो सकता है अलोकेशन, हेलो, एम आई ऑडिबल?
Hello. Allocating the resources. Yes. Yes, allocating some kinds of resources. For example, memory. Okay, memory is also resource. Okay, so what is the allocation? Allocation of memory space for the program. Okay, program में क्या हो सकता है? Set of instructions and the data. For example, अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? C का एक कोड assume कर रहे हैं. Okay, C का एक प्रोग्राम है, तो फर्स्ट फंक्शन लोडर क्या परफॉर्म करेगा? उस C प्रोग्राम को मेमोरी स्पेस अलोकेट करो. अलोकेट करो मतलब रिजर्व करो. अलोकेशन मतलब डायरेक्टली हमने वहां पे जाके डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को प्लेस नहीं किया हुआ है, जस्ट अलोकेशन हुआ है कि अभी दो नंबर्स मतलब डेटा है तो वो इस लोकेशन में जाएगा, उसका फंक्शन इस लोकेशन में जाएगा, लाइकवाइज अलोकेशन हुआ है. ओके, सो द फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म बाय द लोडर इज व्हाट? अलोकेशन. सो अलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस फॉर द प्रोग्राम. ओके, नाउ सेकंड फंक्शन इज लिंकिंग. यस, व्हाट इज लिंकिंग? एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट अबाउट द लिंकिंग? यस, लिंकिंग क्या हो सकता है? हेलो, ओके, फॉर एग्जांपल सी प्रोग्राम है हमारा, उसमें हम थ्री फंक्शंस को यूज कर रहे हैं और कुछ डेटा है हमारे पास, 2 नंबर्स है और 3 फंक्शंस है. ओके, तो जैसे कि आपको मालूम है कि प्रोग्राम कंसेक्यूटिव लोकेशंस में सेव नहीं होता है. ओके, सो पहले डेटा कहीं और से होता है. फॉर एग्जांपल आपने माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ा होगा डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट. डेटा सेगमेंट में डेटा स्टोर होता है, कोड सेगमेंट में इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं. ओके, लाइकवाइज मतलब जो भी हमारा प्रोग्राम है वो डिफरेंट जगह पे जाके सेव होता है, मेमोरी स्पेस में डिफरेंट जगह पे जाके सेव होता है. और जब ये रन होता है तब जो भी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल पहले रन होता है तो इनपुट लगेगा, इनपुट कहाँ पे तो भी सेव है मेमोरी में, पहले वो लगेगा, उसका मेमोरी लोकेशन कुछ अलग होगा. ओके, उसके बाद फंक्शन की नीड है, फर्स्ट फंक्शन की नीड है तो उसका मेमोरी लोकेशन कुछ अलग होगा. ओके, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का आउटपुट मेरा थर्ड फंक्शन का इनपुट है. ओके, तो मुझे क्या करना है? ये सारी चीजें लिंक करनी होंगी. ओके, तो ये लिंकिंग का काम कौन करेगा? आपका लोडर. ओके, फॉर एग्जांपल आप बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हो तो वो भी कंसेक्यूटिवली मेमोरी स्पेस में सेव नहीं होगा, वो अलग अलग लोकेशन पे सेव होगा, लेकिन रन होने के वक्त वो साथ में आता है. मतलब उनको लिंक करने का काम कौन करता है? लोडर करता है. ओके, एनी डाउट इन लिंकिंग? हेलो, No, ma'am. okay, now third function is what? The relocation. Okay, so it is very important important function of your loader, relocation. Okay, so इसका बेसिक एग्जांपल हम दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम आपने माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ा होगा. ओके, तो कुछ यूजर्स लिख रहे हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम. ओके, फॉर एग्जांपल 2 यूजर्स है, यूजर ए एंड यूजर बी. ओके, यूजर A wants to save his program on location 100. Okay, again user B wants to save the program on the location 100. लोकेशन 100 तो एक ही फिजिकली अवेलेबल है हमारे पास मेमोरी में, लेकिन प्रोग्राम वहां पे सेव होने के लिए 2 है, यूजर ए का प्रोग्राम है, यूजर बी का प्रोग्राम. फिजिकली इज इट पॉसिबल? नो, बिकॉज एक ही लोकेशन पे 2 प्रोग्राम सेम नहीं हो सकते. ओके, लेकिन जो भी यूजर्स है या प्रोग्रामर्स है, दिस यूजर्स आर अनअवेयर ऑफ दिस मेमोरी स्पेस अलोकेशन. उनको क्या पता है? बस मेमोरी एड्रेस डाल दो प्रोग्राम में कि यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग लोकेशन है, यहाँ पे मेरा प्रोग्राम सेव होना चाहिए. यूजर ए ने भी वो किया, यूजर बी ने भी वो किया. ओके, तो उन दोनों का काम खत्म हुआ, वो चले गए. तो अंदर सिस्टम के अंदर क्या होता है कि रिलोकेशन होता है. ओके, यूजर ए, प्रायोरिटी यूजर ए को दी जाती है जो टाइमिंग के हिसाब से, तो 100 लोकेशन पे यूजर ए का प्रोग्राम सेव होगा. ओके, और उसके बाद अनदर फ्री लोकेशन पे जाके यूजर बी का होगा. ओके, यूजर ने दिया है 100 लोकेशन, 2 प्रोग्राम एक लोकेशन पे सेम नहीं हो सकते, तो उनको रिलोकेट करना पड़ेगा, किसी एक को तो रिलोकेट करना पड़ेगा, और वो फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? लोडर परफॉर्म करता है. ओके, so this is the working of your relocation. Okay, and final function is what? Loading. So loading is nothing but the actually saving or loading the data and instruction into that allocated location. मतलब फंक्शन नंबर 1 में हमने स्पेस अलोकेट करके रखा था, अलोकेशन किया था, वहां पे जाके सेव नहीं किया था. ओके, तो लोडिंग फंक्शन क्या करेगा? वहां पे जाके जो भी अलोकेटेड स्पेसेस है प्रोग्राम एंड डेटा के लिए, वहां पे जाके वो सेव करेगा. लोडिंग फंक्शन जाके सेव करेगा डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को. ओके, सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ योर लोडर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन from unit number 1. So what is a loader? And explain its all functions. Okay, so loader is a program that takes the object code as an input and it prepares for the execution, or it starts the execution, and it is having 4 important functions. The first one is allocation,
second one is linking, third one is relocation, and the fourth one is loading. Any doubt in this? Hello? No, ma'am. Okay, so next PPT, the same thing, whatever I have explained to you, just read it out. The first function of loader is allocation. So यहाँ पे loader allocates space for the programs in the main memory. जो भी हमारी main memory available है हमारे पास, वहाँ पे जाके it allocate करता है. यहाँ पे actual saving नहीं होता है, just allocation करता है loader. First function में. Okay. Now second one is what? Linking. Okay. If we have different modules of our program, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया था, 4-5 फंक्शंस है, वो अलग अलग मेमोरी में सेव है. ओके, सो उन फंक्शंस को हम यहाँ पे मॉड्यूल्स कंसीडर करेंगे. ओके, सो लोडर क्या करेगा? इन ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स को लिंक करेगा विथ ईच अदर at the time of running. Okay, so this is what the linking. Now relocation, the same example I have explained to you just before. So the first thing about the relocation is what? It adjusts the all address dependent location. Okay, ये adjust करता है किसको? Address dependent locations को adjust करता है. और simple example क्या है? If we have two programs, program A and program B, program A is saved at location 100. Okay, the first program is saved at the location 100 and user wants to save the program B on the same location. यूजर दूसरा यूजर है हमारा बी यूजर, उसका प्रोग्राम बी है और उसको सेम लोकेशन पे सेव करना है. ओके, बट दैट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल. ओके, सो लोडर का काम क्या है? सो इट विल रिलोकेट प्रोग्राम बी टू द सम अनदर फ्री लोकेशन. दैट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ योर लोडर, दैट इज रिलोकेशन. नाउ लोडिंग, द लास्ट फंक्शन ऑफ लोडर इज व्हाट? Physically loading the machine instructions and data into the main memory. Now machine instructions and data is what? Machine instructions मतलब क्या? कि हमारे functions. For example, C program मैंने यहाँ पे consider किया है, तो उसमें कुछ data है, कुछ functions है, तो machine instructions will be your functions and data will be your numbers. For example, addition का program है, तो 2 and 3 will be your data. Okay, तो actual loading of your instructions and data into the main memory is performed by the loader in the function of loading. ओके, तो जो भी फर्स्ट फंक्शन में हमने अलोकेट करके रखा था स्पेस, उस स्पेस पे जाके ये डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस लोड होंगे. सो दिस इज व्हाट अबाउट द लोडर. एनी डाउट इन लोडर? हेलो हेलो. No, ma'am. ओके, No, सो ma'am. नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज व्हाट? असेंबलर. तो अभी तक हमने दो ही देखे हैं. ओके, तो हम कौन सा पॉइंट अभी पढ़ रहे हैं? components of system software पढ़ रहे हैं. Okay, so the first was text editor, the second was loader. Okay, now what is third, which is assembler, and the whole unit is focused on your assembler. Assembler is very important in case of unit number 1. Okay, practically आपको ये बनाने हैं assembler. So before that you have to understand the theory things about the assembler. Okay, so we'll start the assembler first. So assembler क्या है? assembler is a translator, okay, which translate the assembly language program into machine language. Okay, so the definition of assembler is what? It is a translator which translate the assembly language program into machine language. Okay, so जैसे कि आपने माइक्रोप्रोसेसर में पढ़ा होगा assembly language program, right? And ALP, that is assembly language program to add to number, और माइक्रोप्रोसेसर का जो भी आपने पढ़ा है that वो किस लैंग्वेज में था? assembly language में था. ओके, अभी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम आपने बनाया है. ओके, और आपको उसको ट्रांसलेट करना है मशीन लैंग्वेज में. क्यों करना है ट्रांसलेट? कोई बता सकता है मुझे? सर, हेलो हेलो. Because system doesn't understand the assembly language. It वेरी understand गुड. only ओके, यस, मशीन मतलब क्या? हमारी कंप्यूटर मशीन. ओके, सो कंप्यूटर मशीन को कौन सी लैंग्वेज आती है? ओनली द बाइनरी लैंग्वेज. ओके, जो कि हमें नहीं आती है बाइनरी लैंग्वेज. ओके, 0101 हम इतना याद नहीं रख सकते. ओके, सो पहले आता है हाई लेवल लैंग्वेज, देन आता है असेंबली लेवल लैंग्वेज एंड देन आता है मशीन लैंग्वेज. ओके, हाई लेवल लैंग्वेज हमने पढ़ ली फर्स्ट सेकेंड ईयर में, सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज. उसके बाद आपने पढ़ा असेंबली लैंग्वेज. ओके, और उसके बाद आपके पास है मशीन लैंग्वेज, जो कि हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है. बाइनरी लैंग्वेज वी कांट अंडरस्टैंड. ओके, बट सिस्टम को पता होना चाहिए कि करना क्या है. लेकिन सिस्टम को बस एक ही लैंग्वेज आती है विच इज अ मशीन लैंग्वेज. ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना है? असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा. तो उसके लिए क्या है हमारे पास? असेंबलर है. तो ये बेसिकली ट्रांसलेटर है विच ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम. ओके, और ये किसके हेल्प से करता है? इट रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स.
ओके जो कौन सी डेटा स्ट्रक्चर है वो हम लास्ट पॉइंट में देखेंगे. सो बेसिकली डेफिनेशन यहाँ पे क्या है कि assembler is a translator which translate the assembly language program into the machine language program. Okay, because our system, our machine can't understand assembly language program. And the very important point about the assembler is what? Every machine have different assembly language. ओके फॉर एग्जाम्पल माइक्रोप्रोसेसर 8086 उसका असेंबली लैंग्वेज अलग है. अभी मेरे पास आई थिंक कोर i3 है, उसका असेंबली लैंग्वेज अलग है. ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन अलग है. मतलब इट इज अ मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज इज अ मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेज. ओके सो दिस इज व्हाट द असेंबलर. यहाँ पे हमने बस डेफिनेशन देखा है. होल यूनिट में हमें असेंबलर कैसे बनाना है और असेंबलर कैसे वर्क करता है ये सब चीजें हमें आगे पढ़नी है. ओके फिलहाल हम कंपोनेंट स्टडी कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन देख रहे हैं. तो यहाँ पे बस हम यहाँ पे डेफिनेशन देखने वाला है विच इज असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम. यू कैन सी इन द डायग्राम the input for the assembler is what? Assembly language program. The output for the assembler is what? Machine language. Okay, the input is what? Assembly language program and the output is what? Machine language. You can see in the diagram. That is what your assembler. Okay, so this is what the third component of your system software. Now next one is what? Macroprocessor. This is the next component of your system software which is macroprocessor. आपने macros use किए हैं second year में. I think microprocessor subject में same. Okay, so macro क्या करते हैं हमें? Macro allows a sequence of source language code to be defined once and then referred many times. Okay, for example यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? एक ही बार हमें एक फंक्शन को लिखना है. ओके एक फंक्शन का कुछ बॉडी है, कुछ टास्क परफॉर्म करना है, एक ही बार लिखना है और जब भी प्रोग्राम में उसकी जरूरत होगी बस उसको कॉल करना है. ओके फॉर एग्जांपल मेरे प्रोग्राम में मुझे 10 बार एडिशन करनी है. ओके तो एडिशन का कोड मैं एक ही बार लिखूंगी. ओके विच तो किसके हेल्प से? मैक्रो के हेल्प से मैं क्या करूंगी? एक ही बार लिखूंगी और जिन 10 टाइम्स मुझे एडिशन करनी है उस मैक्रो को मैं बस कॉल करूंगी. ओके तो इसका फायदा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है कि मेरी जो है मेमोरी स्पेस सेव होने वाली है. ओके फॉर एग्जांपल 5 लाइन का कोड है तो एडिशन का क्या है? 5 लाइन का कोड है. ओके तो ये 5 लाइंस मुझे 10 टाइम्स इन माय प्रोग्राम मुझे लिखनी पड़ेगी. मतलब जो भी मैं लिखूंगी वो मेमोरी में सेव होगा. द सेम रिपीटेड लाइंस अगर वहां पे सेव होगी तो आपकी मेमोरी क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी. ओके तो हमें क्या करना है? तो मैक्रो में एक ऐसी फैसिलिटी देता है, प्रोवाइड करता है कि आप वो कोड एक ही बार लिखो और जब भी आपको जरूरत हो आप वहां पे बस कॉल कर सकते हो. ओके नाउ मैक्रो आपको समझ में आया, एक ही बार लिखना है कुछ लैंग्वेज की किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में कुछ इंस्ट्रक्शन को एक ही बार लिखना है और जब भी उसकी जरूरत होगी उसे मेनी टाइम्स रेफर करना है. यहाँ पे हमें मैक्रो नहीं स्टडी करना है, हमें मैक्रो प्रोसेसर को स्टडी करना है. ओके तो यहाँ पे हम मैक्रो क्या है वो देख रहे हैं. ओके फॉर एग्जांपल एक असेंबली लैंग्वेज में हम देख रहे हैं सिंटैक्स कैसा है? मैक्रो, उसके बाद उसका मैक्रो का नेम जो भी आप लिख सकते हो, यूजर डिफाइंड होता है ये. उसके बाद है सेट ऑफ पैरामीटर्स. ओके तो पैरामीटर्स अगर आपको चाहिए तो आप वहां पे लिख सकते हो, आपको नहीं डिफॉल्ट मैक्रो लिखना है तो आप ये ऑप्शनल है सेट ऑफ पैरामीटर्स. उसके बाद मैक्रो की बॉडी में क्या आएगा? फॉर एग्जांपल हम एडिशन का मैक्रो लिख रहे हैं तो एडिशन का लॉजिक यहाँ पे आ जाएगा और एंड क्या होगा? एम एंड, दैट इज मैक्रो एंड. दिस इज अ वन काइंड ऑफ सिंटैक्स ऑफ योर मैक्रो. ओके तो ये मैक्रो के बारे में है कि हमें सोर्स लैंग्वेज कोड को एक ही बार डिफाइन करना है और उसके बाद वी कैन रेफर इट मेनी टाइम्स व्हेनेवर वी नीड इट इन आवर प्रोग्राम. ओके उसके बाद हमने देखा है सिंटैक्स में पहले आता है कीवर्ड मैक्रो, आफ्टर दैट नेम ऑफ द मैक्रो. उसके बाद सेट ऑफ पैरामीटर इज ऑप्शनल. इफ यू वांट टू गिव पैरामीटर्स यू कैन गिव, इफ यू डोंट वांट टू यू कैन गिव इट. ओके उसके बाद हमें लिखना है मैक्रो की बॉडी, वॉट एवर द लॉजिक ऑफ योर मैक्रो शुड बी देयर एंड फाइनली इज व्हाट? एम एंड. ये हो गया मैक्रो. नाउ हमें स्टडी करना है मैक्रो प्रोसेसर. ओके सो मैक्रो प्रोसेसर मतलब क्या? प्रोसेस करना है किसको? मैक्रो को. ओके तो मैक्रो को प्रोसेस करना है मतलब क्या? जहां जहां आपको मैक्रो का कॉल दिखाई देगा वहां पे जाके आपको क्या करना है? मैक्रो को रिप्लेस करना है. मैक्रो की जो भी बॉडी है वो रिप्लेस करनी है. ओके फॉर एग्जांपल मैक्रो प्रोसेसर क्या करता है? इट टेक्स अ सोर्स विद मैक्रो डेफिनेशन. मैक्रो की डेफिनेशन है जो हमने एक ही बार लिखी है. ओके वो लेता है. ओके उसके बाद मैक्रो का कॉल देखता है प्रोग्राम में कितनी बार मैक्रो का कॉल आया हुआ है. जैसे कि मैंने अभी बोला 10 टाइम मुझे एडिशन करनी है तो 10 टाइम मैक्रो का कॉल आ जाएगा. डेफिनेशन एक ही बार आएगी. ओके एंड क्या करता है वो? इट रिप्लेसेस ईच मैक्रो कॉल विथ इट्स बॉडी. ओके जब भी हम प्रोग्राम को रन करते हैं ओके तब क्या होता है? जब भी मैक्रो कॉल आता है उसकी बॉडी वहां पे जाके रिप्लेस हो जाती है. और ये टास्क कौन करता है? मैक्रो प्रोसेसर करता है. ओके सो मैक्रो प्रोसेसर का काम क्या है?
दोनों को लेता है, किसको, मैक्रो डेफिनेशन को लेता है, मैक्रो कॉल्स को लेता है, ओके और उसके बाद वो क्या करता है, ईच मैक्रो कॉल को उसकी बॉडी से रिप्लेस करता है, एंड दिस इज होल अबाउट योर मैक्रो प्रोसेसर। द सेकेंड यूनिट इज बेस्ड ऑन दिस मैक्रो प्रोसेसर इन डिटेल, जैसे कि हमने अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखा है कि मैक्रो क्या है, प्रोसेसर क्या है, ये कैसे रिप्लेस करता है, कैसे स्कैन करता है एवरी मैक्रो कॉल, कितने पैरामीटर्स को रिप्लेस करता है, उन पैरामीटर के टाइप्स क्या है, ये सारी डिटेल्स चीजें हमें यूनिट नंबर 2 में देखनी है, दैट इज मैक्रो प्रोसेसर। Clear? What is microprocessor? The first thing is macro is what? It allows a sequence of code to be defined once and referred many times in your program. And macroprocessor takes this macro definition and macro calls and replace each macro call with its body. Okay? So this is about the macroprocessor. Yes, any doubt? No, ma'am. Okay. So the next component of your system software is very simple, which is compiler. सबको पता है compiler क्या है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर से स्टडी किया होगा. ओके, सो अगेन कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज. ओके, सो कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर, ये ट्रांसलेटर है, वो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज. अभी लो लेवल लैंग्वेज यहाँ पे क्या आएगी, असेंबली लेवल लैंग्वेज आएगी. ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक i3 प्रोसेसर है, लैपटॉप है मेरा i3 प्रोसेसर. ओके, अभी मुझे क्या करना है, सी का मैंने एक प्रोग्राम, सी इज अ हाई लेवल लैंग्वेज. ओके, सी का प्रोग्राम मैंने लिखा है, मुझे उसे रन करना है. तो कैसे रन होगा वो अंदर मैं आपको बताती हूँ. ओके, हाई लेवल लैंग्वेज सी में मैंने कोड लिखा, सी का कंपाइलर मैंने यूज किया. ओके, सी का कंपाइलर यूज करने के बाद उसका कन्वर्जन हो जाएगा लो लेवल लैंग्वेज में. लो लेवल लैंग्वेज मतलब क्या, आपकी असेंबली लेवल लैंग्वेज. ओके, और असेंबली लैंग्वेज इज मशीन स्पेसिफिक, मतलब मेरा कोर i3 प्रोसेसर है, जो उसकी असेंबली लैंग्वेज है उसी में वो कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, और फॉर एग्जांपल किसी और का पेंटियम 4 वाला लैपटॉप है, या लैपटॉप तो नहीं होगा, पीसी है, उस पे जाके तो वो क्या करेगा, वो कंपाइलर उस लैंग्वेज में, पेंटियम 4 की असेंबली लैंग्वेज में आपका सी प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा. मतलब ये क्या है, मशीन स्पेसिफिक है. ओके, तो अभी मेरा सी का प्रोग्राम क्या हुआ है, कोर i3 की असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ है. उसके बाद कौन आता है पिक्चर में, असेंबलर पिक्चर में आता है. ओके, कंपाइलर के बाद असेंबलर क्या करता है, उस लो लेवल लैंग्वेज और उस असेंबली लेवल लैंग्वेज को लेता है एज ए इनपुट और उसका मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्जन करता है. ओके, और असेंबलर के बाद कौन आएगा, लोडर. ओके, लोडर क्या करेगा, अगेन अगर आपका ऑब्जेक्ट कोड है उसको एग्जीक्यूशन के लिए प्रिपेयर करेगा. मतलब डायरेक्टली कंपाइलर करने के बाद आपका डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है, रन करने के बाद एग्जीक्यूट नहीं होता है. कंपाइलर आता है, उसके बाद लोडर आता है, कंपाइलर बाद सॉरी असेंबलर आता है, उसके बाद लोडर एंड देन लिंकर एंड देन योर प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट. और ये सारी चीजें जो आती है वो विद इन नैनो सेकेंड्स में आती है, तो आपको आपका आउटपुट डायरेक्टली स्क्रीन पे दिखता है. तो इसके पीछे ये सारी चीज होती है. फॉर एग्जाम्पल सी का प्रोग्राम रन करना होता है तो आपको ये सारे कंपोनेंट्स के थ्रू आपका प्रोग्राम जाता है, कंपाइलर, देन असेंबलर, देन लोडर, देन लिंकर एंड देन फाइनली आपका क्या होता है. अगर आपके प्रोग्राम में मैक्रो है तो मैक्रो प्रोसेसर आता है उसके अंदर, लोडर के बाद मैक्रो प्रोसेसर वर्क करता है अगर है तो, अगर नहीं है तो वो नहीं आता है. ओके, so this is how your program works or runs into the machine. Okay, so the compiler basically translator है, वो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल दैट इज असेंबली लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. तो इसके कुछ बेनिफिट्स है, व्हाई वी आर यूजिंग कंपाइलर. Okay, why we are using high level language also. So benefits of writing a program in high level language is what, it increases the productivity. Okay, so it is very easy to write a program in high level language. अगर मैंने आपको बोला कि आपको प्रोग्राम लिखना है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, और मैंने 2 ऑप्शंस दिए, सी प्रोग्राम एंड असेंबली लैंग्वेज. आई नो कि आप लोग क्या करोगे, सी लैंग्वेज को, मोस्ट ऑफ यू सी लैंग्वेज चूज करोगे बिकॉज इट इज वेरी इजी टू राइट. Okay, it is very easy to learn than assembly language program. Okay, and that's how it increases the productivity. Okay, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करते हैं, that's how your productivity will increase. ओके, अगेन मशीन इंडिपेंडेंस, जैसे कि असेंबली लैंग्वेज क्या है, मशीन डिपेंडेंट है. हर एक मशीन के लिए i3 के लिए अलग असेंबली है, पेंटियम के लिए अलग है, i9 के लिए अलग है. ओके, लेकिन कंपाइलर की जो हमारी सी लैंग्वेज जो है, हमारे हाई लेवल लैंग्वेज विच इज मशीन इंडिपेंडेंट. ओके, सो प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट. मतलब क्या, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो सकती है. प्लेटफॉर्म मतलब आपके क्या है, मशीन. तो इट इज मशीन इंडिपेंडेंट. तो हर बार आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी नहीं पड़ेगी. अगर कोई नया प्रोसेसर आता है तो कोई नई लैंग्वेज आपको सीखनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया है, प्रोग्राम जो किया है लो लेवल लैंग्वेज में नहीं किया है, हाई लेवल लैंग्वेज में किया है, विच इज सी लैंग्वेज अभी हम कंसिडर कर रहे हैं. ओके, दैट इज वो सी कंपाइलर. ओके, एनी डाउट इन कंपाइलर? हेलो हेलो
Am I audible? No, ma'am. No, No ma'am. doubt. Okay. So the very last component of your system software is what? Debugger. Okay. So debugger सबको पता है, Java program सबने use किया होगा. You can debug C program also. Okay. So debugger क्या करता है हमें? Debugging tool है हमारे पास, हमारे कंपाइलर के साथ बोल सकते हो, C के कंपाइलर के साथ बोल सकते हो या जावा के साथ बोल सकते हो. Okay. Debugging tool helps the programming for testing and debugging the programs. तो आप डिबगर के हेल्प से क्या कर सकते हो, आप आपका प्रोग्राम टेस्ट कर सकते हो, डिबग कर सकते हो. ओके. सो द इम्पोर्टेंट सम फैसिलिटीज ऑफ योर डिबगर क्या, सेटिंग द ब्रेक पॉइंट्स. ओके. फॉर एग्जांपल आपके प्रोग्राम में कहीं तो एरर आता है, ओके, लेकिन कहाँ पे आता है तो आप ब्रेक पॉइंट्स लगा के चेक कर सकते हो. तो ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि यू कैन सेट द ब्रेक पॉइंट. सो फर्स्ट ब्रेक स्टार्टिंग से फर्स्ट ब्रेक पॉइंट पे कोई एरर है क्या नहीं, आप ये चेक कर सकते हो. और अगर आपको एरर चेक करनी है तो आप डिस्प्लेइंग द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स मींस व्हाट. फॉर एग्जांपल आपका एडिशन कहाँ तो भी गलत आ रहा है, बहुत सारे ऊपर आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो हर एक कैलकुलेशन के बाद अगर आपने वैल्यूज वेरिएबल्स के वैल्यूज अगर डिस्प्ले किए तो आपको प्रॉपर्ली आप मैन्युअली चेक कर सकते हो कि कहाँ पे मेरा, किस लाइन पे मेरा गलत आ रहा है. ओके. सो डिबगर की हेल्प से आपको आप एरर सॉल्व कर सकते हो या आपका प्रोग्राम को टेस्ट कर सकते हो. ओके. सो कंपाइलर, डिबगर आर द वेरी कॉमन टूल्स, यू कैन राइट मोर अबाउट इट. Okay. So these all are the components of your system softwares. Okay. So the very first point was the components of your system software. So the first component was text editor. The second was assembler, loader. Yes. The components of system software are text editor, loader, assembler, macro processor, compiler and debugger. तो यहाँ पे हमने introduction इनका देख लिया है. The very first point is our completed now. ओके. सो उसके बाद हमें देखना है मशीन स्ट्रक्चर एंड इट इज अ हार्डवेयर पार्ट. सो वी विल डिस्कस इट इन द लास्ट यूनिट ऑफ योर लास्ट लेक्चर ऑफ योर दिस यूनिट. मशीन स्ट्रक्चर जस्ट आपको प्रोग्राम काउंटर क्या है, मेमोरी क्या है, हाउ योर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू दिस थिंग्स, जस्ट अ पिक्चर ऑफ योर मशीन you have to study about it. Okay. And the next important part is machine language and the assembly language. Okay. So why assembly language पढ़नी जरूरी है, machine language के क्या drawbacks है और assembler किस तरीके से बनाया जाता है, वो सारी चीजें हम आगे देखने वाले. Okay. Any doubt in this till now? Any doubt? Hello. No, No, ma'am. No, ma'am. ma'am. Okay. तो कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो. 1 second. Okay, no doubt. So यहाँ तक हमने क्या किया है, फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा थियोरेटिकल हमने स्टडी किया है. आगे से हमें कुछ प्रोग्राम के हेल्प से हमें कुछ कैलकुलेशंस भी देखने हैं. देन वी विल सी एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट इज व्हाट, हाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड द असेंबलर. Okay, the first two practical assignments are based on this unit. Okay, until the completion of your first unit we can't start the practical because all the things we should know before starting the practical. Okay, so practical number 1 में आपको पास 1 असेंबलर को बनाना है और प्रैक्टिकल नंबर 2 में आपको पास 2 असेंबलर के बारे में, असेंबलर को बनाना है मतलब आप अभी डेवलपर हो, असेंबलर बना रहे हो आप लोग. ओके. सो बिफोर दैट यू हैव टू स्टडी वन पर्टिकुलर असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज सीखने के बाद उसको, उसका प्रोग्राम आपको एज इनपुट लेना है और वो कैसे असेंबलर प्रोसेस करता है. ओके. तो उसके बारे में आपको देखना है. मतलब इसके आगे आप क्या बनोगे, अभी डेवलपर बनोगे, असेंबलर बनोगे. आप खुद एक असेंबलर हो और वो असेंबलर कैसे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को स्कैन करता है, कैसे उसके वेरिएबल सॉर्ट करता है, फंक्शन सॉर्ट करता है, ये सारी चीजें अपने आगे हमें देखनी है. ठीक है. So we will meet in next lecture and then we will start assembly language, a particular assembly language. ठीक है. Okay. Thank you. You can leave the meeting.